Okay. So this is our cardiovascular system. We are starting it. And this is our first case. And this is the blue newborn baby. And this case is from your task book. And I will tell you the number exactly as well after this discussion. Okay. This is from theory and task. So now how you going to approach? You are called to see a baby who is 1 hour old. Okay. So important thing क्या है? आपको age is given. The baby is 1 hour old. ठीक है? He was born. He was born by vaginal delivery at 38 weeks after an uncomplicated pregnancy. Mother has a history of depression and was on fluoxetine throughout the pregnancy. She was born in a good condition. So born in a good condition. So I'm marking the important points. She was born in the good condition and there were no risk factors for the sepsis. No risk factors for the sepsis. The midwife is concerned. The baby looks blue. The baby looks blue. You check the baby's oxygen. You check the baby's oxygen saturation and discovered that it was 65% in the left foot. Okay. So now how you going to approach the baby with the cyanosis, or how you going to approach the baby who is blue. Okay. Next. Now, first question is this. What is the best? Abhi hum ye questions padhenge. Answer we will going to discuss later. Okay. So what is the first question? What is the first question? What is the best descriptor of the fetal circulation in the newborn? So you should have a very detailed idea about the fetal circulation before coming to answer this question. So leave the option. We will back after discuss the fetal circulation. Okay. Next. Okay. Now what they're going to ask, which stimuli would cause the pulmonary arterioles to constrict and lead to an increase in pulmonary vascular resistance. These things all making very difficult. अभी नहीं समझ आ रही होंगी बहुत सारे लोगों को. So we will back to this question later on. So just leave this question as start with this part. First of all, we will going to discuss what is normal fetal circulation. So if you see the fetal circulation, see this diagram first. This is the diagram for the fetal circulation. So if we start our fetal circulation, how it will be going to start, you can see over here that you can see this is the placenta. Okay. So from the placenta, the baby receive blood from the placenta. The baby receive blood from the umbilical vein. So this red, this is the umbilical vein. Okay. So umbilical vein se baby ne blood receive karega. Then what happened? This blood goes to the liver. So if you can see this blood is going to the liver. So what happened? At the site of the liver, in the liver, you can see there is a two connection going on. See, the one is called ductus venosus. The one is called, you can see, which is highlighted with the yellow. This is called ductus venosus. And the second is this part, second. So the blood is basically 50% goes directly to the inferior vena cava. This is your IVC. Goes directly into the inferior vena cava. Why? This ductus venosus. And the remaining 50% of the blood is in your liver. Okay. So first distribution of the blood at the level of the liver. 50% resides in the liver and the 50% connect to the IVC with the help of this called ductus venosus. How you going to remember this name? As this duct connects the two veins, the umbilical vein and the inferior vena cava. That is why it is called ductus venosus. Okay, so it's a connection of the two venous system. This ductus venosus is specialized connection in the fetal circulation only. It is not present into the adult life. Okay. So see what happened. First, the oxygenated blood from the placenta comes to the fetus through a single umbilical vein. So you should have an idea, clear-cut idea, that you have two umbilical veins and one umbilical vein and two umbilical arteries. But the baby receive blood
from the placenta via umbilical vein. Half will travel through the liver with an almost half equal amount bypassing the liver by the ductus venosus into the inferior vena cava. Okay, this point is clear. आप खुद इंटरप्ट करेंगे जहां समझ नहीं आ रही बात, ठीक है? मैं फिर बार बार तो नहीं पूछूंगी, जो नहीं समझ आ रहा है प्लीज वहीं पे पूछ लेना। अब आपके पास फीटल से, अब नेक्स्ट क्या बात बता रहे हैं कि आईवीसी से, आईवीसी में जब ब्लड आ रहा है, अब आप आईवीसी को देखें, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज योर आईवीसी, दिस ब्लू इज आईवीसी. So you can see the IVC is receiving all the blood from the lower body. Okay, it's receiving all the blood from the lower body, and then all the blood from the lower body, it is very dark blue in color. You can see quite dark in blue. Then what happened? It also received blood from this ductus venosus. Then both of this blood get mixed and convert into this purple color. Okay. And then it drains into the inferior, it drains into the right atrium. Okay. So all know this is common. Okay. Inferior vena cava drains all the blood from the lower body into the right atrium. But you can see in the fetal life, the right atrium receiving extra blood. So please keep it in mind, right atrium receiving extra blood in the fetal life from the placenta as well, because of the connection of this ductus venosus with IVC. ठीक है? सुपीरियर वेना केवा क्या काम करती है? अब ऊपर देखें, सुपीरियर वेना केवा brings all the blood, all the deoxygenated blood from the upper part of the body into the right atrium. This is same like an adult life. सबका सुपीरियर वेना केवा अपर साइड ऑफ द बॉडी को ड्रेन करती है इनटू राइट एट्रियम. ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे को क्लियर हो गया. So see the IVC drains blood. The IVC drain blood returning from the lower trunk and extremities into the right atrium. The SVC drains from the upper body with lower oxygen saturation into the right atrium. So IVC and SVC both drains the blood into the right atrium, but the difference is that the IVC has extra amount of blood which is coming from the placenta. Next, now what they are going to say, once in the right atrium, जब blood right atrium के level पे आ गया, some blood passes through the tricuspid valve into the right ventricle, and some blood pass through the foramen ovale into the left atrium. So now see this atrial level. Now the blood, you can see it's coming into the atrium level पे. एसवीसी और आईवीसी दोनों का ब्लड यहाँ पर आ चुका है. अब इसके बाद अगेन टू कनेक्शंस है. सी, this is, we are talking about fetal circulation. So in normal human, what we have just the one pathway. The blood goes from right atrium into the right ventricle through this tricuspid valve. But in the fetal life, we have another connection, which is called foramen ovale, which connects right atrium to the left atrium. So what happened? Some blood goes in this pathway and some blood goes this pathway. Okay, so we have two pathways in the at the level of atrium as well. ठीक है, so atrium के ऊपर दो pathways आपको clear हो गए via foramen ovale. अब इसके बाद क्या होता है? So we back and we can see over here that tricuspid, और ये समझ आ गया, the relatively oxygenated blood from the right atrium crosses the foramen ovale, the left atrium, the left ventricle, also supply two main body parts, that is brain and the heart. So the what they basically told you in this is very simple. What they told you that ये जो blood आपका foramen ovale से जो गया है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था. जो इस फीटस के लिए जो सबसे ज्यादा मैक्सिमली ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो यहाँ से ट्राइवर्स होके डायरेक्टली फोरामिन ओवेल से होता हुआ आपके उसमें, ये फोरामिन ओवेल से होता हुआ जो इधर आया है, फिर ये इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से दो मेन बॉडी के पार्ट्स सप्लाई होंगे. आपका हार्ट भी सप्लाई होगा और आपका ब्रेन भी सप्लाई होगा. ठीक है, now we going to next picture. Okay, अब then what happened? ट्राइकस्पिड का पाथवे का क्या होगा? अभी तो हमने
फोरामिन ओवेल वाले की बात कर ली कि फोरामिन ओवेल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, बॉडी को सप्लाई हो गया, देन द रिमेनिंग ब्लड which passes through the tricuspid valve into the right ventricle enter into the pulmonary artery because alveolus are filled with the liquid and vessels are contracted, so there is high resistance for blood. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अब आप आ जाए इस लेवल पे, क्या हो रहा है यहाँ पे कि यस यहाँ पे क्या चीज हो रही है, क्वेश्चंस ओके ठीक है. अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखें, अब कौन सी पाथवे की बात कर, अब ये वाला जो ब्लड आपने जो ये वाला पाथवे पढ़ा था, कुछ ब्लड राइट एट्रियम से यहाँ ट्राइकस्पिड वेल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वो किस में गया, आपकी पल्मोनरी आर्टरी की तरफ गया. ठीक है. अब पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पे क्या मसला है कि जो आपके एल्वुलस हैं, आगे वाली मैं पिक्चर दिखाऊंगी, पूरे के पूरे फिल्ड हुए में होंगे फ्लूइड की वजह से, क्योंकि इसमें एयर एक्सचेंज हो नहीं रहा तो ये फ्लूइड से फिल्ड होंगे. और जो इसकी वेसल्स होंगी, जो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी, वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड होंगी, बिल्कुल हाईली कॉन्ट्रैक्टेड होंगी. जब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट की, इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है उनको ओपन होने में. तो फीटल लाइफ के अंदर आपके पास कौन सी रेजिस्टेंस हाई होती है, पल्मोनरी रेजिस्टेंस. पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है ना, ये आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये बहुत उसकी जो यू कैन से ये वेसल्स है, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड होती है, टाइटली क्लोज्ड होती है, और इसको आप कहते हैं कि दिस इज हाई पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस. ठीक है. पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होगा आपके पास, जब यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ब्लड यहाँ से आगे जा ही नहीं पाएगा. तो लेट मी मेक इट क्लियर कि जब ब्लड यहाँ पर आया है, पल्मोनरी इसमें आया है आपका, जब ब्लड आपका पल्मोनरीज में आया है, तो आगे जब नहीं जा पाएगा, तो एक और कनेक्शन है आपके पास इस लेवल पे, जिसे कहते हैं, जो कनेक्ट करेगा आपका पल्मोनरी आर्टरी को एओर्टा के साथ, ये वाला कनेक्शन को आप बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस. एक अपने पीछे पड़ा डक्टस वेनोसिस, अब क्या आया, डक्टस आर्टीरियोसिस. आर्टीरियोसिस कनेक्ट्स टू आर्टरीज, एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी. जब आपको जब आपका यहाँ पे ब्लड आगे जाएगा ही नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड पड़ी नहीं, तो ऑटोमेटिकली ब्लड कहाँ जाएगा, आपका एओर्टा की तरफ जाएगा. ठीक है. ब्लड विल शंट और विल मूव इनटू द एओर्टा. ठीक है. ओके. तो फिर हम पीछे जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा. Because alveoli are filled with the liquid, vessels are contracted, so there is high resistance for the blood. तो high resistance होगी blood के लिए. अब आप यहाँ पे देखें, ये इन्होंने दोबारा से आपको बताया है कि high resistance क्यों हो रही है, because ये देखें, ये alveoli पूरे fluid से filled हुए में, और जो उसकी vessels हैं यहाँ पे, ये पूरी contracted है. ठीक है. अब हम क्या देख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हाई रेजिस्टेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है. रुकावट क्यों है, क्योंकि वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई नहीं है. तो बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टेंस at the pulmonary circulation and low systemic resistance अभी है. systemic resistance, systemic किसको बोल रहे हैं, एओर्टा के लेवल पे कह रहे हैं. कंपेयर जब कर रहे हैं तो एओर्टा की प्रेशर्स कम है, पल्मोनरी के प्रेशर्स हाई है. तो मोस्ट ब्लड जो है वो ट्रेवल करेगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, इज शंट करेगा across the ductus arteriosus into the descending aorta. The ductus arteriosus is a similar diameter to the descending aorta. So see, the diameter of the ductus arteriosus is same. Its patency, अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, अब जो टास्क में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि इसकी पेटेंसी को कौन मेंटेन कर रहा है. कहाँ चले गए अचानक से. ओके, सॉरी. ओके. सो इट्स की पेटेंसी को कौन मेंटेन कर रहा है, इसकी पेटेंसी अगर आप देखें कि डक्टस आर्टेरियोसिस की, ये आपसे सवाल पूछा गया था बेसिक में कि डक्टस आर्टेरियोसिस को कौन खुले रखता है, कौन बंद कर देता है, ये अलग अलग सवाल. सो पेटेंसी मतलब डक्टस आर्टेरियोसिस को खुला जो रखेगा, पेटेंसी इज मेंटेन बाय low oxygen tension in the blood, and second thing is that dilating effect of the प्रोस्टाग्लैंडिन. सो दो चीजें हैं जो कि आपकी डक्टस को ओपन रखती हैं. एक आपकी जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लो होना, फीटल के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन लो होती है क्योंकि वो प्लेसेंटा से ब्लड ले रहा होता है. प्लेसेंटा के अंदर कोई बहुत हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आ रहा होता. ठीक है. तो एक आपकी ऑक्सीजन टेंशन का कम होना, और दूसरा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं, दे आर रिलीजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा.
So these are the two main factors which keeps the patency of the ductus arteriosus open. So that is why जब भी कोई ऐसा हार्ट लीजन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो हार्ट लीजन होता है जो डक्ट डिपेंडेंट होता है, वी विल टेक द कॉन्सेप्ट कि अगर डक्ट बंद हो जाएगी तो बच्चा कोलैप्स हो जाएगा. डक्ट डिपेंडेंट लीजन्स कौन से होते हैं? वो लीजन्स होते हैं, वी विल गोइंग टू डिस्कस कि डक्ट डिपेंडेंट लीजन्स आर दोज लीजन्स के जो डक्ट के ओपन होने पे बच्चा चल रहा होता है, जैसे ही डक्ट बंद होगी बच्चा एकदम कोलैप्स हो जाएगा. तो उन रीजन्स में आपको डक्ट को ओपन रखना होता है. तो ओपन रखने के लिए आप फिर क्या देखते हैं, उनको प्रोस्टाग्लैंडिन E2 आर्टिफिशियली उनको सप्लाई करते हैं. ठीक है, क्योंकि उनका कनेक्शन प्लेसेंटा से कट डाउन हो जाता है. तो फिर आपको प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो देना होता है ताकि डक्ट दोबारा से ओपन हो. अभी हम इतनी डिटेल में इतनी मुश्किल बात नहीं करेंगे, अभी मैं बोलूंगी तो सब परेशान हो जाएंगे. लीव इट, अभी मेक इट सिंपल. ठीक है, अभी हमने नॉर्मली जो ट्रांसपोजिशन आपका एएसडी और वीएसडी के साथ होता है ना, वो डक्ट डिपेंडेंट नहीं होता क्योंकि उसमें कनेक्शन मौजूद है. एएसडी मौजूद है, वीएसडी. अब ऐसी बात अभी करूंगी, फिर लोग पहले हम पूरा कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर हम उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे. ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास कनेक्शन है. एमके, मुझे आपका नाम एग्जैक्टली नहीं पता, बट यहाँ एमके आ रहा है, इसमें और कनेक्शन है, तो वो डक्ट डिपेंडेंट ना हुआ. टीजीए अगर उसमें एएसडी वीएसडी कुछ भी नहीं होगा ना, तो वो डक्ट डिपेंडेंट होगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्लाइड. Okay. So yes, now we have discussed the fetal. Now this is the ductus arteriosus. They are telling you this is a connection between descending aorta and the pulmonary artery, and the diameter is same to the descending aorta, and it connects the two arteries. So अब आपने ये माइंड में रखना है कि fetal circulation अंदर blood flow किस तरह होता है. Please make it very clear. Fetal के अंदर pulmonary artery से aorta की तरफ जा रहा होता है. एक मिनट, राइट. fetal कहाँ से? ये जो फ्लो है ना का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी ये जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, इससे आपका एओर्टा में जा रहा होता है यूं. तो ये शंट क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन क्या हुई, राइट साइड है ना, पल्मोनरी आर्टरी को हम राइट साइड के, तो हम कहते हैं कि शंट आपका बॉडी में राइट टू लेफ्ट होता है. ठीक है, फीटल लेवल पे फीटस जब होता है तो ये जो शंट होता है, जो कि नॉर्मल है हर फीटस के लिए, अभी तक हमने सारी फीटस की नॉर्मल बातें पढ़ी, तो शंट की जो डायरेक्शन होती है राइट टू लेफ्ट होती है. राइट टू लेफ्ट का मतलब है पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड moves into the aorta. Okay, ठीक है, so this is right to left shunt. Okay, next is that, so what now they are telling, this relatively deoxygenated blood then travel back to the placenta. अच्छा, अब जो भी दोबारा से प्लेसेंटा के अंदर आएगा, now you can see over here कि पल्मोन ये एओर्टा निकला, you can see over, ये आपकी एओर्टा था, एओर्टा के बाद डिसेंडिंग एओर्टा निकला, और डिसेंडिंग एओर्टा से, सी दिस इज एओर्टा, दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा से फिर आप नीचे जाएं और आपकी यहाँ पे टू इंटरनल इलियक, ये टू इंटरनल इलियक आर्टरीज, ये आपकी इलियक आर्टरी है. इलियक आर्टरी कन्वर्ट होती है इनटू एक्सटर्नल और इंटरनल. तो दो इंटरनल, ये देखिए दो इंटरनल से आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज निकलनी. सो इट इज अराइजिंग फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरी से टू अम्बिलिकल आर्टरीज अराइज हो रही हैं, और ये दोनों अम्बिलिकल आर्टरीज से जो ब्लड आ रहा है ये मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. देन ट्रेवल इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड, और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड में जाके ये दोबारा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा से फिर ये मदर के सर्कुलेशन में चला जाएगा. तो ये आपको नॉर्मल पाथवे सबको क्लियर हो गया, वेरी क्लियर, इसमें कोई क्वेश्चन है यहाँ तक. फिर हम ट्रांजिशन की बात करेंगे कि जब बेबी बॉर्न होगा तो क्या होगा. यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? आई एम स्टॉपिंग, प्लीज आप पहले पूछ लें, फिर आई विल मूव फॉरवर्ड. नो क्वेश्चन. सो ये याद रखना है, टू अम्बिलिकल आर्टरीज एंड इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इंटरनल इलियक आर्टरीज. ओके ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द ट्रांजिशनल फेज. ट्रांजिशनल फेज क्या है आपका, कि अब बेबी बॉर्न हुआ है, ठीक है, अब बॉडी, अब प्लेसेंटा कट हो रहा है. ठीक है, सबसे पहले क्या चीज हुई, सबसे पहले काम क्या होता है, जैसे ही बेबी बॉर्न होता है सबसे पहले आप ऑक्लूजन करते हो अम्बिलिकल कॉर्ड की. ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड की ऑक्लूजन करते हैं. ठीक है, दैट रिमूव्स द लो रेजिस्टेंस कैपिलरी ब्लड. उसने सबसे पहले क्या रिमूव किया आपका, and result an increase in the systemic vascular resistance. जैसे ही आपने umbilical cord कट करी,
आपने सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज किया, एओर्टा वाली साइड की रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई है, ठीक है। ब्लड क्या हुआ है, ब्लड का जो फ्लो हुआ है इनटू द राइट एट्रियम आल्सो डिक्रीज। कोई मुझे इसको एक्सप्लेन करे कि राइट एट्रियम का ब्लड फ्लो क्यों कम होगा, प्लीज मुझे से एक्सप्लेन करें क्यों, ये क्यों लिखा है, बताएं। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा था, प्लीज मुझे रिपीट करें। राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा था, सुलेमान कहाँ कहाँ से आ रहा था, सुपीरियर वीना केवा से आ रहा था, डक्टस इंफीरियर वेना विनोसस। केवा, वेरी गुड, इंफीरियर वेना केवा से, और इंफीरियर वेना केवा एक्स्ट्रा ब्लड कहाँ से दे रही थी, डक्टस वेनोसिस से। जैसे ही आपने अम्बिलिकल कॉर्ड को कट किया, ये वाला ब्लड क्या हुआ, कम हो गया। तो जो अमाउंट हुआ, जो फ्लो हुआ, वो राइट एट्रियम में क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्लियर, ठीक है। दूसरा, आपने जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड रिमूव करी, तो ये जो लो रेजिस्टेंस कैपिलरी बेड है, ये कौन सा लो रेजिस्टेंस है, ये आपका अम्बिलिकल आर्टरीज वाला है, ठीक है। तो ये वाला अम्बिलिकल आर्टरी वाला कनेक्शन खत्म हो गया, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है। पहला चेंज आपने क्या नोटिस किया, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हुई, और ऑक्लूजन करने के बाद आपका फ्लो राइट एट्रियम में डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट देखें, ये देखें, ये कट हुआ है, ये आपका कट हो रहा है, और कट होने के बाद आपका अम्बिलिकल आर्टरी से कनेक्शन खत्म होगा और डक्टस वेनोसस से। फिर दूसरा चेंज क्या होगा, ये तो कट किया, दूसरा चेंज बेबी ब्रेथ लेगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड फेज क्या आ रहा है, बेबी इज टेकिंग ब्रेथ। ब्रेथ लेने से क्या होता है, when the baby takes its first breath, the lung expands, लंग एक्सपेंड्स, लंग के अंदर एक्सपेंड हुए, लंग जो पहले किससे थे, फ्लूइड से भरे हुए थे, ठीक है। अब वो जब एक्सपेंड हुए तो उसके अंदर क्या आना शुरू हो गई, एयर आई, ठीक है। द लंग एक्सपेंड, जब लंग के अंदर एयर आई तो आपकी पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस फॉल्स हो गई, ठीक है। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस फॉल हो गई, क्यों फॉल हो गई, क्योंकि फ्लूइड इज रिप्लेस्ड बाय एयर। एयर कहां से आई, बेबी ने ब्रेथ ली, ठीक है। एज अ रिजल्ट अब क्या होगा कि ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो इनटू द लंग्स। ये फ्लो कहां से जाएगा, लंग्स में, ये फ्लो कहां से जाएगा, प्लीज एक्सप्लेन करो, लंग्स में ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज होगा, लंग्स में ब्लड फ्लो कैसे इंक्रीज होगा। आपको बताया था ना, राइट एट्रियम में जो ब्लड आया था, वो आधा तो गया था राइट वेंट्रिकल में, और आधा फोरामेन ओवेल से लेफ्ट साइड पे गया था। जो राइट वेंट्रिकल में गया था वो फिर कहाँ गया था, पल्मोनरी आर्टरी में गया था। पल्मोनरी आर्टरी से चूंकि रेजिस्टेंस ज्यादा थी, तो वो डक्टस आर्टेरियोसिस से शंट होके एओर्टा में चला गया था। तो अब ये वाला जो कनेक्शन है जो एओर्टा में जा रहा है, ये कट डाउन होगा, क्यों, यहाँ पे आपने रास्ता पल्मोनरी आर्टरी का ओपन कर दिया, तो अब पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने इस साइड की रेजिस्टेंस कम कर दी। एज अ रिजल्ट ब्लड स्टार्ट्स टू फ्लो इनटू द लंग्स, द इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, किसका, लंग्स का, लंग्स में जब ज्यादा ब्लड जाएगा तो ब्लड वापस भी लंग्स से वापस कहाँ पे आता है, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके ब्लड कहाँ पे वापस आता है, लेफ्ट एट्रियम में। कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रियम में। पहले लेफ्ट एट्रियम का ब्लड क्या था, किस पे डिपेंड कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ फोरामिन ओवेल के जरिए राइट एट्रियम उसको कुछ पार्ट दे देता था, ठीक है। लंग्स से ना होने के बराबर ब्लड आता था, क्योंकि लंग्स में ब्लड जाता ही नहीं था, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई थी। अब लेफ्ट एट्रियम का फ्लो इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे इंक्रीज हुआ, लंग्स से ब्लड इधर आने लग गया, और राइट एट्रियम का ब्लड डिक्रीज हुआ, क्योंकि आपने डक्टस विनोसिस का कनेक्शन खत्म कर दिया, ठीक है, प्लेसेंटा खत्म कर दिया। तो एज अ रिजल्ट blood increase pulmonary blood flow back to the left atrium causes functional closure of the foramen ovale। तो फोरामिन ओवेल आपका जो होता है, ये आपके दो इस तरह से कनेक्शन होता है, राइट एट्रियम में और ये आपका लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो स्नैप लाइक होता है, ठीक है। तो जब यहाँ के प्रेशर्स कम थे तो ब्लड यहाँ से आराम से मूव हो रहा था। अब जब यहाँ ब्लड फ्लो ज्यादा हुआ
तो उसने धक्का मार के इस फ्लैप को बंद कर दिया, ठीक है, फंक्शनल क्लोजर हो जाएगा फोरामिन ओवेल का। और इसका रीजन क्या है, ये आपसे सवाल पूछे जाते हैं, रीजन क्या है, बिकॉज पल्मोनरी एट्रियम का, लेफ्ट एट्रियम का फ्लो इंक्रीज हुआ है, फ्लो इंक्रीज होने की वजह से इसने फंक्शनल क्लोजर किया है फोरामिन ओवेल का, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, okay, so you can see changes at the birth, so you can see this fluid जो पूरा filled हुआ था fluid से, अब वो replaced होने लग गया by air। तो जब एयर के साथ जैसे ही चेंजेस एट द बर्थ, अगर आप देखें, अगर आप रेजिस्टेंस को ग्राफ वाइज देखें तो आप ये देखेंगे कि जो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस एट बर्थ इट वाज वेरी हाई, बाय द एज ऑफ एट बर्थ, दिस इज द टाइम at birth it is very high and by 6 to 8 week it decreases significantly। तो इतनी तेजी से आपकी pulmonary vascular resistance increase हो रही होती है, ठीक है। 50% decreases what, और pulmonary artery क्या लिख रही है इर्तिजा, क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज आप प्रॉपर लिखो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो ये चेंजेस एट बर्थ, ये देखें, ये फोरामिन ओवेल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, येलो से वो हुआ है, फ्लो इंक्रीज होगा लेफ्ट एट्रियम का, क्यों इंक्रीज होगा, पल्मोनरी फ्लो, और इसने आपका इस फ्लैप को बंद कर दिया। और आपसे पूछते हैं फोरामिन ओवेल क्यों बंद हो रहा है, वो लेफ्ट एट्रियम के प्रेशर और फ्लो इंक्रीज होने की वजह से फोरामिन ओवेल बंद हो रहा है। अच्छा, तो अब क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आती हैं, सबसे पहले आपने देखा कि अच्छा, दूसरी चीज आपकी क्या चीज क्लोज होती है, डक्टस आर्टेरियोसिस। सबसे पहले आपने देखा डक्टस विनोसिस जो था, जो आपका कनेक्शन था डक्टस विनोसिस का, वो आपने जैसे प्लेसेंटा से ब्लड आना खत्म हुआ, डक्टस विनोसिस से ब्लड आना खत्म हो गया। लेफ्ट साइड में तीन चीजें स्पेशल हैं, फीटल सर्कुलेशन में तीन चीज स्पेशल है, डक्टस विनोसिस, वो आपका प्लेसेंटा कट डाउन करेंगे, विनोसिस ब्लड विल स्टॉप। Second, the connection was between two atrium. So जैसे left atrium का blood will increase, the left atrium will started to close. Third connection was between two arteries, that was ductus arteriosus. How it is closed? So you can say these are the questions. Functional closure of the ductus arteriosus usually occur within first 24 hours. जो functional closure है ना, please make it very clear. One is the anatomical closure and the second is the functional. So functional closure occur within 24 to 48 hours after the birth. And how it is occur? Three factors are responsible for it. The first is when you cut the placenta, the prostaglandin E2 going to be decreased. The prostaglandin was to maintain or to open. It was there to open the ductus arteriosus. So once the placenta cut down, the prostaglandin levels will going to be decreased. The first factor is this. Second thing is that what I told you, that the oxygen saturation, if you increase the oxygen saturation, if you increase the oxygen content, that will also close the ductus arteriosus. Okay. Third is that reduce sensitivity of the ducts to the prostaglandin. तो ये सेंसिटिविटी आपके रिसेप्टर के लेवल पे, के रिसेप्टर के लेवल पे भी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। तो दीज थ्री फैक्टर्स, तो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दो हैं, ऑक्सीजन इंक्रीज होना और सेकंड प्रोस्टाग्लैंडिन का डिसअपेयर होना, ये दो फैक्टर्स है which will make the closure of the ductus arteriosus. Anatomical closure takes a long time, it takes around 3 weeks. Okay, so these are the changes at the birth. You can see ductus arteriosus बिल्कुल बंद हो चुका है, फोरामिन ओवेल का ये जो कनेक्शन है, you can see these are the changes at the birth. ये बिल्कुल बैंड लाइक, बिल्कुल स्ट्रक्चर लाइक हो गया, पहले प्रॉपर डक्ट थी जिसका डायमीटर वाज अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग aorta, वो बिल्कुल इट जस्ट अ स्ट्रक्चर, एंड दिस कनेक्शन foramen ovale also closed down. So these are the more important changes at the birth. तो डक्टस, अच्छा, अब विनोसिस का क्या काम है, विनोसिस की इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए कि जो डक्टस विनोसिस है, वी आर टॉकिंग अबाउट वीनस कनेक्शन, उसका क्या फायदा होता है। तो डक्टस विनोसिस रिमेन पेटेंट फॉर 7 to 10 days, 7 से 10 दिन तक पेटेंसी का क्या फायदा है, इट कैन प्रोवाइड एक्सेस फॉर सेंट्रल एक्सेस वाया अम्बिलिकल वेन। ये वाला हम सेंट्रल एक्सेस एनआईसीयू में यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, यूवीसी लाइन डालते हैं,
यूवीसी लाइन क्या करती है, हमारी अम्बिलिकल वेन को कनेक्ट कर देती है डायरेक्ट आईवीसी से। तो आपको सेंट्रल एक्सिस मिलता है बिकॉज ऑफ डक्टस विनोसिस। तो जब एक दफा डक्टस विनोसिस बंद हो गया तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट दिस सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अम्बिलिकल वेन connecting directly into the IVC with the help of this ductus venosus. This ductus venosus remain patent for 7 to 10 days, and this was used for getting this was the basically we use this axis when once we need in the NICU, and later it converts into the ligamentum venosum, ठीक है। so ligament है और venous का ही ligament है, so it's later convert into the ligamentum venosum, okay। ओके सो ये हमने लिगामेंटम वेनोजम का पढ़ लिया। अच्छा अब क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं इस पिक्चर के अंदर। आपको इन्होंने डक्टस विनोसिस दिखा दिया है, डक्टस विनोसिस कनेक्शन था जो कि कन्वर्ट हो जाएगा इनटू लिगामेंटम वेनोजम, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, ओके दो दो लिगामेंट्स बन रहे हैं, एक है और एक आप देख रहे हैं लिगामेंटम टेरीज है। सो व्हाट इज द लिगामेंटम टेरीज, आई थिंक ये जो टेरीज है जो आपका कनेक्शन था वो पूरा लिगामेंटम वेनोजम है, और जो अम्बिलिकल वेन्स हैं, द अम्बिलिकल वेन्स जो शुरू में ये अम्बिलिकल वेन थी ना वो कन्वर्ट हो जाती इनटू लिगामेंटम टेरीज। तो प्लीज वेरी क्लियर, लिगामेंटम टेरीज इज द remain is the you can say it's the end product of the veins, while ligamentum venosum जो था वो आपका end product था ductus venosus का। so these two terms are important, ठीक है। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, एक मिनट लेट मी चेक इट। अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट, अब हम पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले हम अपने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो हमारे टास्क के प्रीवियस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना वो डॉक्टर सुलेमान आप करेंगे, आर यू देयर? तो कुछ थोड़ा सा इंटरैक्टिव हो जाए। यस यस डॉक्टर सुलेमान, प्लीज रीड द सिनेरियो एंड ऑन क्वेश्चंस एज वेल, और बताते जाएं कि इसमें क्या गलत है क्या सही है। स्टार्ट से। Yes, please open your mic and say. Dr. Suleiman, are you there? नहीं, आप जोर से पढ़ें प्लीज, आप रीड जोर से करें, आप एक एक ऑप्शन को बताएं कि ये क्यों सही है ये क्यों गलत है। सो रीड इट लाउड। Which is the best description of fetal circulation in the newborn? Blood flows through the foramen ovale from the left atrium to the right atrium. This is true, I think. ट्रू है ये ट्रू है। प्लीज Uh, बहुत केयरफुली जवाब देना है आपने। देखें फोरामेन ओवेल में ब्लड की मूवमेंट कहाँ से कहाँ थी? from the right to left. वेरी गुड, तो इसमें तो उल्टा लिखा हुआ है ना। जी जी मैंने वो ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक टाइम, डोंट बी कंफ्यूज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। In the fetus, there are two umbilical arteries and one umbilical vein. There are two umbilical veins and one umbilical artery. No, you are again confusing. We have two umbilical arteries coming from internal iliac arteries, and we only have one umbilical vein. This is true. Okay. Sorry. Next. No problem. Next. Over 90% of the blood bypasses the liver through the ductus venosus. 50% bypass through the ductus venosus, as you mentioned earlier. Yes. But जी 90% of the blood, it's not 90. We discuss half. You right? yes जी जी Half blood. So it is almost 50%. Okay. So 50% of the blood bypasses the liver by the ductus venosus. So this is false. Okay. It's not 90. Next.
The umbilical artery carries oxygenated blood from the placenta to the fetus. No, it's false. Why? It is carried by the umbilical vein. तो ये एक्चुअली क्या होना चाहिए, करेक्ट क्या होना चाहिए इसमें? The umbilical umbilical vein. veins, yes, ठीक है. So umbilical veins carries oxygenated blood from the placenta to the vein, while the umbilical artery carries deoxygenated blood. It is not oxygenated. So this is false. Next. The patency of the ductus arteriosus is maintained by the vasodilating effect of the prostaglandin G2. It's false. It's maintained by E2. Very good. It is E2. Very good. So this is again false. Very good. Now next. Dr. Alim, are you there? Dear Dr. Raj, Yes, please read this question. which stimuli would cause the pulmonary arterioles to constrict and lead to an increase in pulmonary vascular resistance? Okay, so what they are talking about? They are No. talking about the fetal life. Fetal life में which factors जो कि pulmonary arterioles को constrict रखते हैं और pulmonary resistance को increase रखते हैं, कौन से factors हैं? तो पढ़े, हम आप आंसर्स पढ़ें. Capillary refill time of 2 seconds. False. High vascular resistance है, तो capillary refill time increase होगा. और high blood oxygen levels, तो ऑक्सीजन लेवल लो होता है, फ्लूइड फील्ड अल्विलाई हैं, राइट टू लेफ्ट शंटिंग है, तो लो टेंशन ऑक्सीजन लेवल होता है, ये भी फॉल्स है. यस. हाई ब्लड पीएच वुड बी लो ड्यू टू एसिडोसिस, अगेन फॉल्स. वेरी गुड. हाइपोथर्मिया, hypothermia is true. Yes, very good. And low blood carbon dioxide level, again false. वेरी गुड. अच्छा, ये डॉक्टर अलीम ने माशाल्लाह कर लिया है. इट्स वेरी ग्रेट. बेसिकली ये क्या पूछना चाह रहे थे, ये अभी तक आपने कहा था कि डॉक्टर आयशा पल्मोनरी आर्टेरियोल्स को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट फ्लूइड की वजह से हुए हैं. अब ये इतने सारे फैक्टर्स की आपने बात कर दी है, तो मे बी अभी ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी ये जो क्वेश्चन था वो बेसिकली टॉक कर रहा था पीपीएचएन के बारे में. किसके बारे में बात कर रहा था? PPHN. What is PPHN? PPHN is persistent pulmonary hypertension in newborn. ठीक है, PPHN, persistent pulmonary hypertension. persist करे, pulmonary hypertension fetal life में मौजूद होती है. This is true, this is normal, but ये persist कर जाए, ठीक है, ये सही ना हो, ये persist कर जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं PPHN. ये किन कंडीशन में persist करती है? ये उन कंडीशन में persist करती है जहां पे जब बेबी बॉर्न होता है और उसको ऑक्सीजन ना मिले. जैसे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन हाई नहीं, ऑक्सीजन ना हो, क्योंकि ना होने पे ही कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं. ऑक्सीजन हाई हो जाए तो क्या होता है, इनकी डायलिटेशन स्टार्ट हो जाती है. तो ऑक्सीजन ना मिलने की क्या सिचुएशन है? फॉर एग्जाम्पल HI हो गया, बेबी बॉर्न हुआ है, ब्रेथ ही नहीं ले रहा है, ठीक है, तो वो भी PPHN. मिकोनियम एस्पिरेट करके बैठ गया, सारा मिकोनियम है, ब्रीदिंग स्टैब्लिश नहीं हुई, ऑक्सीजन नहीं मिली, लो ऑक्सीजन स्टेट थी, तो उसमें भी आपकी पल्मोनरी हाइपरटेंशन परसिस्ट कर जाएगी, डायलेट नहीं होंगी आपकी वेसल्स, ठीक है. और भी ऐसी कोई भी कंडीशन जैसे कि सेप्सिस है, जिसके अंदर आपकी पीएच बढ़ जाए, पीएच कम हो जाए, आपके कैपिलरी रिफिल टाइम प्रोलॉन्ग हो जाए, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, these all are the factors which will responsible ki they will not going to allow to decrease pulmonary hypertension. It will keep the pulmonary blood vessels in a contracted state. Did you get this concept? What is PPHN? Okay, next question अभी हम छोड़ देते हैं. अभी हम PPHN की जो कुछ चीजें रह गई उसको कवर कर लेते हैं. ये क्वेश्चन उन्होंने तो पहले ही सॉल्व कर लिया, बट हम अब PPHN के ऊपर बात करते हैं. व्हाट इज PPHN? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं.
Okay, this is PPHN, persistent pulmonary hypertension of the newborn. So what is this? अभी आपको मैंने क्या explain किया था? Prior to birth, it is normal that pulmonary blood vessels have a thick layer of smooth muscles which play a key role in pulmonary vasoconstriction. So if you can see this picture, so see what I made this picture. Yes, this is the picture. You can see how the vascular remodeling occur normally. So you can see at the time of the fetal life, the diameter is the very small. Why this diameter is very small? You can see this diameter is very small because of thick layer of the smooth muscles around it. But you can see at the age of 6 months, the layer become thins out. See, vascular smooth muscles. This is very important. You should know these small things. Task is not that way easy. अगर आपको इतनी स्मॉल स्मॉल बातों का रीजन नहीं पता होगा ना कि ये स्मूथ मसल बॉल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, यू विल नॉट गोइंग टू आंसर. क्लिनिकली तो हमें पता है पीपीएचएन हो रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है इसमें? स्मूथ वेस्क्यूलर स्मूथ मसल्स हैं, कि वो स्मूथ मसल्स जो है वो थिन आउट नहीं होते, उसकी थिन लेयर नहीं होती, तो इस वजह से परसिस्ट करती है आपकी हाइपरटेंशन. तो अब आप देखिए, दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना. क्या बाय 6 मंथ आपकी जो वेस्कुलर लेयर है स्मूथ मसल्स की बिल्कुल थिन आउट हो जाएगी एंड डायमीटर विल गोइंग टू बी इंक्रीज. ओके, एंड इट टेक्स ग्रेजुअली दीज चेंजेस अकर. इट डज नॉट अकर सडनली. दिस इज द नॉर्मल फेज. बाय 6 months the diameter is maximum of the pulmonary artery I'm talking about. Okay, so you can see in this what they are going to route. Prior to birth, the pulmonary blood vessels have a thick layer of the smooth muscles which play a key role in the pulmonary vasoconstriction. After birth, this muscle begin to thin and become less sensitive to changes in oxygenation. After birth, what happened is ये muscle जो है वो started to become thin and less sensitive to change in oxygenation. आफ्टर बर्थ की बात की है कि जब एक दफा बर्थ हो जाए तो इतने सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन बर्थ के टाइम पे जब बर्थ हो रही होती है, स्पेशली अब सी एनी क्लिनिकल कंडीशन that causes hypoxia, especially in the first few hours of the life. See, first few hours are the very, very important. Especially any event occur at this time. First few hours of the life will what they will going to do with pulmonary vasoconstriction and subsequent increase in pulmonary vascular resistance. कोई भी hypoxia का reason हो सकता है. It could be meconium aspiration. It could be pneumonia. It could be HIE. It could be sepsis. Sepsis also called hypoxia. So any factor जिसने आपके ऑक्सीजन कम की, वो क्या कर देगा? पल्मोनरी वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा वेसल्स की, और आपकी पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज रहेगी एंड कैन कॉज डिले इन दीज नॉर्मल सर्कुलेटरी चेंजेस. जो आपकी नॉर्मल सर्कुलेटरी चेंजेस थी उसको डिले कर देगी, पोटेंशिएटिंग राइट टू लेफ्ट शंटिंग. तो जब आप वेसल्स पल्मोनरी की कंस्ट्रिक्शन बढ़ाते चले जाएंगे तो शंटिंग कहाँ होती जाएगी? जैसे फीटस में होती थी राइट टू लेफ्ट. प्लीज रिमेंबर कि पीपीएचएन के अंदर भी शंटिंग क्या हो रही है? राइट टू लेफ्ट across the ductus arteriosus and foramen ovale. This is known as persistent pulmonary hypertension of the newborn. Suleiman, is this point clear to you or not? Rabia? सुलेमान, राबिया, अलीम. अलीम को तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो उसने आंसर कर दी थी चीजें. वेरी गुड. ठीक है, तो हम सुलेमान को और राबिया को इसलिए स्पेशली बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे साथ अभी मोस्ट जूनियर है. ठीक है, सही. सो फीटल सर्कुलेशन. क्या फीटल सर्कुलेशन के बारे में बात की कि फीटल सर्कुलेशन में तो हमें पता है दैट इज नोन कि इंक्रीज पीवीआर होता है. क्यों इंक्रीज पीवीआर होता है? उसके रीजंस देखें. इसके रीजंस क्या हैं? लंग्स वेंटिलेटेड नहीं हो रहे. जब लंग्स वेंटिलेटेड नहीं हो रहे तो आपके पास इंक्रीज अमाउंट ऑफ वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं. सो व्हाट आर द वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर्स? यू कैन सी एंडोथेलियन एंड थ्रोम्बोक्सिन. उनका एक्सेस होता है और वेजोडाइलेटर्स की डिक्रीज होता है. दिस इज विच इज दे आर टॉकिंग अबाउट
एट द टाइम फीटस, फीटल सर्कुलेशन की अगर हम बात करें उसमें आपके वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स के अमाउंट ज्यादा होते हैं और वेजो डायलेटर्स कम होते हैं। जब हम पीपीएचएन को मैनेज करते हैं तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम ट्रीटमेंट में वेजो डायलेटर्स देते हैं। हम ट्रीटमेंट में फिर क्या करना होता है, हमारा मकसद क्या होता है, वेजो डायलेटर, नाइट्रिक ऑक्साइड, प्रोस्टासाइक्लिन, ये फिर हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती है पीपीएचएन के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या था, ये सारा रिपीट है। Okay, what is persistent pulmonary hypertension? It means persistence of increased PVR and the shunt should be right to left at the level of ductus arteriosus, at the level of foramen ovale as well. ठीक है, जाहिर सी बात है आपके पास फ्लो आएगा ही नहीं लंग से, तो राइट टू लेफ्ट फोरामेन ओवेल पे भी आपका शंट रहेगा। ठीक है, ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, अब देखो उन्होंने क्या, कोई भी फैक्टर, अब देखो सारे फैक्टर्स लिखे हुए जो ऊपर जो हमें क्वेश्चन मिली, एनी फैक्टर व्हिच कॉजेस hypoxia, which causes hypercapnia, high carbon dioxide, acidosis, low pH and cold, anything. So these are the 4 important factors which causes pulmonary vasoconstriction. When the pulmonary vasoconstriction occur, it will cause increased PVR. When PVR increase, the shunt would be right to left. Right to left का shunt का क्या मतलब हुआ, lungs में blood जा ही नहीं रहा। Right to left shunting जितनी increase करेंगी उतनी ज्यादा आपके पास blood जो है वो उसमें lungs में नहीं जाएगा। ठीक है, और जब lungs में blood नहीं जाएगा उतना ही ज्यादा एग्रीवेट होगा हाइपोक्सिया, उतना ही ज्यादा एग्रीवेट होगा हाइपरकार्बिया। So this is the vicious cycle. The child enter, the baby enter into the vicious cycle. The more the pulmonary vasoconstriction occur, it causes more increased PVR, it causes more right to left shunt, and the less amount the blood will goes into the lung, all the blood will shunt into through the ductus arteriosus. So this is the summary. Any factors, hypoxia, hypothermia, acidosis, hypoglycemia, all triggers constriction of the pulmonary vasculature, increase in the pulmonary vascular resistance. Often a vicious cycle ensues as increased pulmonary vascular resistance and shunting reduce blood flow to the lungs, less oxygenation resulting in worsening स्पेशली। कैन यू रिकॉल एनी कंडीशन जिसमें हाई लंग्स बने ही नहीं होते? बहुत कॉमन कंडीशन है, कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। ठीक है, इट्स अ कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, पल्मोनरी हाइपोप्लेस, पेरिनेटल एस्फिक्सिया, मिकोनियम एस्पिरेशन, आरडीएस, इसमें भी हाइपोक्सिया होता है, अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, पॉलीसाइथीमिया में भी लंग्स का फ्लो अच्छा नहीं होता, hypoglycemia. So all these are the factors which will lead to PPH, which can lead to PPH. सही है? अच्छा, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है, डिफरेंट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंशियल साइनोसिस। डिफरेंशियल साइनोसिस क्या चीज होती है? व्हाट इज अ डिफरेंशियल साइनोसिस? अब हम इधर कॉन्सेप्ट लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, ये पिक्चर बनाई हुई है, इस पे कॉन्सेप्ट लेते हैं ताकि हमें डिफरेंशियल साइनोसिस का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, which is very very relevant to the PPHN. So you can see normally what happened, we have a right atrium, ठीक है, and blood is, right atrium से blood is coming, goes into the right ventricle and then goes into the pulmonary artery. ठीक है, pulmonary artery। अब हमें पता है कि डक्टस आर्टेरियोसिस ये लेफ्ट साइड की बॉडी है। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, लेफ्ट साइड में ब्लड कहां से आता है? लंग से आता है, सबको पता है। ठीक है, इट गोज इनटू द एओर्टा। अब हमने क्या चीज अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो डिसेंडिंग एओर्टा कनेक्शन इज एट द लेवल ऑफ डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, तो जो कनेक्शन है आपका डक्टस का वो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से बाद में। ठीक है, सो अब आपकी जब मिक्सिंग होगी, जब राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है, ठीक है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग है, तो एओर्टा में जो ब्लड है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस से जब शंट में ब्लड आएगा, तो ब्लड जो नीचे वाला एओर्टा में होगा, जो डिसेंडिंग एओर्टा में होगा,
जो को ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी के बाद वाला ब्लड होगा उसमें मिक्सिंग हो रही होगी, तो ऊपर जो अपर बॉडी को जो ब्लड मिल रहा है उसमें मिक्सिंग नहीं है। ठीक है, तो क्यों मिक्सिंग नहीं है? क्योंकि पीडीए जो है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस है, वो कनेक्ट हुआ हुआ है आपका डिसेंडिंग एओर्टा के साथ आफ्टर अराइजिंग ऑफ द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। तो आपको क्या मिलता है कि जब आप चेक करते हो राइट आर्म की, ये दिस इज राइट आर्म, और इसके बाद ये इसमें जो सेचुरेशन आती है वो आती है प्रीडक्टल। कौन सी सेचुरेशन आती है? प्रीडक्टल। प्रीडक्टल कौन सा एरिया है? प्रीडक्टल का मतलब है ये ऊपर वाला एरिया, डक्ट से पहला वाला एरिया। तो उसके अलावा लेफ्ट आर्म, राइट लेग, लेफ्ट लेग, इन तीनों के अंदर जो आपके पास आ रही होती है वो क्या होती है? पोस्ट डक्टल। वो क्या होती है? पोस्ट डक्टल होती, पोस्ट होती है। ठीक है, तो अब आप जब ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करोगे पीपीएचएन में, जहां पे शंट की डायरेक्शन क्या है? राइट टू लेफ्ट, तो आपके राइट आर्म की सेचुरेशन होगी 96, और जो लेफ्ट आर्म होगा या लेफ्ट लेग होगा या राइट लेग होगा उसकी सेचुरेशन होगी 91। इन दोनों के अंदर डिफरेंस होगा मोर देन 4%, मोर देन 4%। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल साइनोसिस, यानी कि साइनोसिस डिफरेंशियल, राइट आर्म में नहीं है और डक्ट के बाद वाले हिस्सों के अंदर साइनोसिस है। क्यों है? बिकॉज ऑफ द कनेक्शन ऑफ द डक्ट later to the brachiocephalic branch. Rabia, are you there? Rabia nahi hai. Aleem, Suleiman, is this clear? What is differential cyanosis? Aleem, clear? Very clear. Suleiman, Sadaf, Irtiza, clear है सबको? वेरी क्लियर, वेरी गुड। अब आप ये डिस्क्रिप्शंस देख लो एक दफा। इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस कर लिया, सो वी आर मूविंग टू आवर प्रीवियस स्लाइड। upper body, especially preductal area. So preductal area, I've already tell you what is the preductal area. It is prior to the brachiocephalic artery. ठीक है, preductal area has higher oxygen saturation than the postductal area. So duct supplying blue blood to the aorta. कौन से aorta को? Descending aorta को। पीपीएचएन, इसमें दो कॉजेज आते हैं। इंटरप्टेड एओर्टा में बाद में एक्सप्लेन करूंगी, जरूर करूंगी, बट अभी एक डिफरेंशियल याद कर लो, दैट इज पीपीएचएन। इंटरप्टेड एओर्टिक आर्च में जब डिस्कस करूंगी, जो मैं डक्ट डिपेंडेंट लीजन्स पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह मंडे को। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमने जो है वो आपको बताया है कि क्या होता है इसके अंदर, बॉडी किस तरह से होगी। नॉर्मली बॉडी थ्रू आउट पिंक, बट इन डिफरेंशियल साइनोसिस यू कैन सी द अपर पार्ट, the upper face, the head, and only the right arm, this is the preductal part, which is pink, while the other body, the left arm, the right leg, the left leg, all will be the blue. Okay, so ये इन्होंने कनेक्शन भी दिखा दिया है और ये आपको पिक्टोरियल पिक्चर हो गई है। ठीक है, एक और कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस। व्हाट इज रिवर्स? तो रिवर्स का मतलब क्या होगा? कंडीशन सेम क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स का क्या मतलब है? अपर बॉडी ब्लू हो जाएगी। रिवर्स हो गया ना, पहले अपर बॉडी क्या थी? पिंक थी, अब अपर बॉडी ब्लू हो जाएगी और लोअर बॉडी क्या हो जाएगी? पिंक हो जाएगी। ठीक है, और आपको ये किस कंडीशन के अंदर मिलता है? ये इन्होंने आपको बताया, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज। और ये क्यों मिलता है कि हम पिक्टोरियल बना लेते हैं, अभी हमें समझ आ जाएगा। तो जिसमें एक पिक्टोरियल के ये रिवर्स डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। हमने क्या पढ़ा था? हमारी बॉडी में राइट एट्रियम है, ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और उसके बाद ट्रांसपोजिशन के अंदर क्या चीज निकलती है? एओर्टा निकलता है इधर से। अग्री? अग्री ना? राइट साइड से एओर्टा निकलता है ना, फिर लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम, फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहां से क्या निकलता है? पल्मोनरी। अग्री? उल्टा हो गया ना? नीचे से आप कनेक्शन बनाओ, इसका नीचे कनेक्शन बनाओ डिसेंडिंग एओर्टा पे। ठीक है, नीचे कनेक्शन बना दे। अच्छा, अब मैं काम कर रही हूँ, एओर्टा, पल्मोनरी, ठीक है, और सिर्फ ये वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, और कनेक्शन नीचे है इसका। ठीक है, अब क्या होगा? अब मुझे बताओ,
राइट वेंट्रिकल जो ब्लड देगा अपर बॉडी को, वो कौन सा ब्लड देगा? ऑक्सीजनेटेड देगा कि डीऑक्सीजनेटेड देगा? वेंट्रिकल से आ रहा है ना, राइट साइड सारा ड्रेन करता है आपका डीऑक्सीजनेटेड, ये तो सबको क्लियर है। तो आपका अपर बॉडी कौन सा ब्लड रिसीव करेगी? बिल्कुल ब्लू ब्लड। फिर क्या हुआ कि आपका नीचे कनेक्शन है पीडीए के साथ, ठीक है ना, यहाँ पे आपकी मिक्सिंग हो रही है ब्लड की, ठीक है। अब ये जब आपकी मिक्सिंग होगी इस लेवल पे नीचे, तो मिक्सिंग के जरिए आपको यहाँ का कौन सा वाला ब्लड मिल जाएगा? पिंक ब्लड। इस वक्त पल्मोनरी आर्टरी के अंदर वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रही है, इसमें कौन सा ब्लड होता है लेफ्ट साइड पे? पिंक। सो पिंक ब्लड का कनेक्शन होगा डिसेंडिंग एओर्टा के साथ नीचे। सो नीचे जब कनेक्शन होगा तो नीचे वाली बॉडी क्या हो जाएगी? पिंक। तो ये क्या हो गया? रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस। क्लियर टू एवरीवन? शुड आई रिपीट? Should I repeat or is it clear? Repeat, no problem. देखो दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. Let me rub it everything. ऊपर से मैं पिक्चर बनाती हूँ. No problem. Just listen it. Very good. आप लोग प्लीज वो करें, मुंह से भी बोले, कोई इशू नहीं, माइक ऑफ करके बोले, इससे ज्यादा मजा आता है. जब लोग बोलते हैं तो फिर मजा आता है, वरना वन वे लगता है सब कुछ. ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है. अब आप प्लीज नोटिस करना कि मैं क्या कर रही हूँ. बिल्कुल बेसिक से बना रही हूँ. ये आपका क्या है? राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता है? पहले मुझे बोलते जाओ. डी ऑक्सीजनेटेड. ठीक है. अच्छा, मैं इसको आप लोगों की आसानी के लिए ब्लू मार्क करती हूँ. ये गंदा गंदा ब्लड आ रहा है. ठीक है. अच्छा जी, पहले मैं एट्रियम्स बना लेती हूँ. ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है. ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ट्रांसपोजिशन की बात की, ट्रांसपोज हो गई. ट्रांसपोजिशन में राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है इर्तिजा? जल्दी बताओ, बोलो. राइट वेंट्रिकल से निकलता है आपका एओर्टा, ठीक है. लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी क्या चीज निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी. ये ट्रांसपोजिशन है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है. अब क्या हो रहा है आपके पास? अब देखते जाओ. अब ब्लू देखना. राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, सुपीरियर वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा से. राइट वेंट्रिकल में ब्लू ब्लड चला गया. राइट वेंट्रिकल से अब एओर्टा में कौन सा ब्लड आया आपके पास? बिल्कुल ब्लू ब्लड आया है, ठीक है. अब आप यहाँ पे येलो से इसका पीडीए का कनेक्शन बना लो, ठीक है. अभी आप देख रहे हैं लोअर डिसेंडिंग एओर्टा में कनेक्शन होता है ना. अब आप चलो रेड वाला. लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है? लंग से, ठीक है. जिस वेरी पिंक ब्लड goes to left ventricle, very pink blood. लेफ्ट वेंट्रिकल किस में खुल रही है? पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है. अब आप देख रहे हो कि प्री डक्टल, डक्टल से पहले जो एओर्टा था उसमें कंप्लीट ब्लू ब्लड आ रहा था फ्रॉम द बॉडी. देन आफ्टर दिस कनेक्शन यहाँ पे कुछ पिंक ब्लड इसमें मिक्स हो गया, ठीक है. तो पिंक और ब्लू जब मिक्स हो गया तो ये क्या बन गया आपस में? लेट सपोज, और कलर्स मेरे पास नहीं है, जस्ट सपोज कि ये मिक्सिंग हो गई, ठीक है. ऊपर वाला पार्ट जो है बॉडी का, जो मैंने आपको अपर फेस और राइट आर्म बताया था, उसको कंप्लीट ब्लू ब्लड मिल गया. डक्ट से बाद वाला पार्ट जो है, जो कि लेफ्ट आर्म और लेग थी, उसको येलो कलर का ब्लड मिल रहा है, जो कि मिक्स ब्लड है. तो वो कंपैरेटिवली पिंक है. इट्स कंपैरेटिवली पिंक है. दैट इज कॉल्ड रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस. ये डिफरेंशियल साइनोसिस इज देयर, बट इट इज रिवर्स. इज इट क्लियर नाउ? Any question now? Is it clear? Very good. ठीक. Okay, now we proceed करते हैं. ये कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए गए. तो पीपीएचएन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? रिवर्स नहीं भी याद हो रहा ना, तो वो थोड़ा मुश्किल है. सिर्फ पीपीएचएन को प्लीज नहीं फॉरगेट करना. पीपीएचएन में आपको नॉर्मल डिफरेंशियल साइनोसिस मिलता है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है. सही है, नॉर्मल आपको डिफरेंशियल. वी आर ऑल्सो फिनिशिंग आवर क्लास. बस ये आपको रिवर्स डिफरेंशियल साइनोसिस की ये चीज बता दी. ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएचएन. सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएचएन? पीपीएचएन क्या बात बताई थी आपको? पीपीएचएन के अंदर आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या करना होता है?
आपने वेस्कुलर डायलेटेशन करनी है। वेसल्स को डायलेट करने के लिए सबसे पहली चीज उसे ऑक्सीजनेट करो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब हम ऑक्सीजन हाई करेंगे तो वेसल्स विल गोइंग टू बी डायलेट। तो पहली चीज इन्होंने क्या किया, आपकी सबसे पहला काम किया जब आपने पीपीएचएन को मैंने आपने वेंटिलेशन दी टू इंप्रूव ऑक्सीजनेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आपने क्या करना है कि आपको पता है शंट है ना, शंट की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है कि आयोनोट्रोपिक सपोर्ट टू इंप्रूव ब्लड प्रेशर एंड द परफ्यूजन। तो ये आयोनोट्रोपिक सपोर्ट क्यों दे रहे हैं, आयोनोट्रोपिक सपोर्ट अलीम क्यों दे रहे हैं? एसवीआर बढ़ाने के लिए, सिस्टमिक वैस्कुलर वेरी रेजिस्टेंस को गुड, इंक्रीज करेंगे। लेफ्ट साइड के प्रेशर्स बढ़ाने। अब देखो एक तरफ एग्जांपल ले लो, एक तरफ राइट साइड पे बहुत हाई प्रेशर, समझो कि फैटी मैन था, फैटी मैन था और यहाँ पे सिस्टर, तो आपका यहाँ पे इसको इंक्रीज करना है ताकि जब आप इंक्रीज करोगे तो डू यू थिंक कि फिर अगर यहाँ भी प्रेशर ज्यादा हो, यहाँ भी प्रेशर ज्यादा हो, फ्रॉम हाई रेजिस्टेंस टू लो रेजिस्टेंस। अभी क्लियर हुई डॉक्टर सुलेमान? जी अब क्लियर है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ। सेकेंड पॉइंट हम ये बात कर रहे थे कि हमने क्यों आइनोट्रोपिक सपोर्ट दी है, ठीक है। आइनोट्रोपिक सपोर्ट हमने इसलिए दी है कि हमारे पास राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो रही, राइट साइड पे रेजिस्टेंस हाई थी। हाई रेजिस्टेंस को यूं समझ लो कि एक फैटी मैन, फैटी मैन, फैटी मैन, ठीक है। और यहाँ पे एक कमजोर सा आदमी था। अब अगर ये इसको पुश करेगा तो डेफिनेटली ब्लड मूव करता है फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। दोनों साइड की को सेम कर दोगे, इसको भी हाई कर देंगे अगर एक दूसरे को, तो भी अफेक्ट कुछ वाला हाई हो, ये भी हाई है, तो ब्लड की मूविंग को अगर स्टॉप करोगे, लेफ्ट साइड पे ब्लड लंग्स में जाएगा तो ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगी। दैट इज व्हाई यू आर गिविंग आइनोट्रोपिक सपोर्ट टू इंक्रीज द सिस्टमिक vascular resistance so that you can stop shunting। शंट प्रिवेंट करना है, लंग्स में हमें ब्लड पहुंचाना है, ठीक है। फिर तीसरा काम क्या करोगे, एक तो आप वेंटिलेशन दोगे, आइनोट्रोपिक सपोर्ट दोगे, फिर पल्मोनरी वेजोडाइलेटर्स यूज करोगे। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड है, सिल्डेनाफिलिन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होने चाहिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, सिल्डेनाफिलिन। और अगर ये चीजें काम नहीं करती है, आपकी नॉर्मल वेंटिलेटर्स काम नहीं करते, देन आपके पास एडवांस वेंटिलेटर्स होते हैं विच इज HFO, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन, हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रिस्पिरेटरी रेट देते हो। जब ये सब चीजें एक्मो, दिस इज नॉट इको, दिस इज मिस्टेक, इट इज एक्मो पे डाल देते हो, लंग्स और हार्ट का काम एक्मो मशीन खुद करना स्टार्ट करती है जब तक बच्चा जो है वो इंप्रूविंग साइड पे आए, जब तक उसकी चीजें इंप्रूव हो, ठीक है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर देयर। ओके, सो दीज आर जस्ट एक सेकेंड, ये हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देख लेते हैं। ये अब फार्माकोलॉजी भी हम इम्पोर्टेंट साथ साथ पढ़ाएंगे आपको लेक्चर के, बट अब अपनी बुक्स को जरूर कंसर्न करेंगे, ठीक है ना। आपको लेक्चर में बेसिक बताएंगे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरह काम कर रही है, ठीक है। वेजोडाइलेटर्स दो तरह से काम करते हैं, एक हमारे पास CGMP पाथवे होता है, ठीक है, CGMP पाथवे होता है, और दूसरा हमारे पास CAMP पाथवे होता है, ठीक है, CGMP पाथवे होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाती है, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि आपकी वेजोडाइलेशन करवाती हैं, वो आपके साइक्लिक ये CGMP पाथवे को यूज कर रही होती है, ठीक है। एडेनिलेट साइक्लेज वाला पाथवे जो है, ये इसको अभी हम देख लेते हैं इसमें कौन सी ड्रग्स काम करती हैं।
सिल्डेनाफिल जो है वो हमारे पास आई थिंक फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर है, बट आई हैव टू चेक इट। अच्छा, अब हम जो है ना वो अपना आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ऑलरेडी 10 हो गए, ठीक है। आप लोगों ने जो है वो ये वाला कॉन्सेप्ट हम कर लेते हैं कि अब हम अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, साइनोसिस इन द न्यूबॉर्न। अब तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बता दें, फिर हम इंशाल्लाह मंडे को कंटिन्यू करते हैं। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? No questions? Finish? Okay. So we just finish our class. If you have any questions, you can ask, you can send in our group. I will reply over there and we will continue inshallah on Monday. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz.